Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Art of Leadership and Motivation, HRM 760, and today is lecture number 14. And I am your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood. So, as you remember that in our previous lecture, we were talking about crisis management, and particularly with reference to the role of leaders in crisis management. So, let's have a brief reflection of our previous lecture. Okay, what comes in your mind when you think about crisis management? Okay, have you ever seen any crisis in your life? In Pakistan, we have seen many crises. So there are different types of crises. For example, people have personal crisis. Like for example, if somebody fails an exam, some in case of divorce, in case of death of a family member or some close relative, things like that. So we have business crisis. Like for example, business decline, like profit decline. When you lose your market share, when you lose your customers. So you can have a crisis in case of these, factors. And then there are natural, events that cause crisis. For example, earthquakes, floods, storms. So, and then we have some technological, crisis types, like, for example, we have viruses in computers, people, they hack your websites. So things like that. So in our previous lecture, we have talked about different types of crisis, and we have talked about crisis and then how to, manage it, and what is the role of leaders in crisis management. So in our today's discussion, we are going to talk about how to deal with crisis. Now, this is the most important question, because if we are unable to deal with crisis effectively, what may be the results? Of course, we can lose our business, we can lose our market share, we can lose our reputation, and most important thing is there is a loss of human life. Human lives are lost in crisis. So as a leader, today we are going to talk about that as a leader, how we can manage crisis in the most efficient and effective manner. Now we are going to talk about the Mitroff's crisis management model. Now this model is the most important model when we talk about crisis management. So, like most human events, crisis can be described in terms of stages or relatively identifiable sequences of events and reactions. So, crisis की भी stages होती हैं. जैसे ह्यूमन लाइफ में ग्रेजुअली लाइक हर चीज में स्टेप बाय स्टेप सर्टन स्टेजेस होती हैं. आप जैसे मार्केटिंग में आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है. वी हैव इंट्रोडक्टरी स्टेज, देन ग्रोथ स्टेज, देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन एंड देन विड्रॉल ऑफ प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जैसे स्टेजेस हैं, सेम इज द केस इन क्राइसिस, दैट देयर आर different stages of a crisis. Stages enable planners to monitor risk, progress, target stakeholders, and take strategic action
appropriate to that stage. Now, it is the major responsibility of the planners in an organization to monitor risk. So you need to be a keen observer. So when you become a keen observer, you can monitor even the minor details of a situation. You can monitor the risks. You can identify the risks. Even in some cases, you can forecast the risks. आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि how one can know about the crisis before it reaches you. So you can have a good planning. You can make proactive plans. You can plan in advance. And when you know that there is a crisis that is approaching, then with the help of these stages, we are able to identify the target stakeholders. Now, stakeholders means what? Stakeholders means that all the persons who are the affectees or who have any concern with this crisis. So, not only the affected persons, but at the same time, we are also talking about those persons who have any concern. Like, for example, like in an organization, if there is a crisis, and then those persons belong to different families, so all those families of the employees, they become the stakeholders. And then these stages help the planners to take strategic action appropriate to the stage. So these are the various stages. We are going to talk about these 6 stages, as you can see there in the model of Metroff's crisis management, that there are 6 stages. So these stages help planner to take strategic action as per requirement of the stage. So you need to have a customized plan, a customized strategic plan as per the stage. And Metroff stages of crisis management model are: the first stage is avoiding crisis. Next is preparing to manage crisis. Then recognizing crisis. Then containing crisis. Then resolving crisis. And then learning from crisis. So these are the 6 stages of crisis management model given by Metroff. So now we are going to talk about all of these 6 stages in detail with examples from different organizations. The first stage of Metroff's crisis management model is called avoiding crisis. Make crisis planning a part of your strategic planning. कि अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक परमानेंट पार्ट आप बनाएंगे क्राइसिस प्लानिंग को. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि डू यू सी एनी क्राइसिस प्लान्स इन योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन? जो लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑफिसेज में, या आपके एल्डर्स काम कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जॉब कर रहे हैं, तो आस्क देम द सेम क्वेश्चन. और अगर आप खुद जॉब कर रहे हैं तो आप अपने आप से सवाल करके अभी पूछें कि क्या क्राइसिस प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं ऑफिसेज में? आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. सो इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस there is no crisis planning. Now this is really very important to know that there is a misconception that it won't happen to me. Like
it will not happen to me. I will never face any crisis, or organization is not going to face any crisis. So this mentality that this crisis or any crisis, can never, come in our organization. So it won't happen to me mentality, when it is there, and when the crisis enters your organization. So whenever there is a crisis in your organization, whenever your organization goes in crisis, it won't happen to me mentality multiplies the damages of the crisis. So people, when they are not ready, people when they have not done their crisis planning, when they face crisis, they are in much worse situation than those people who are ready and who have already worked on their crisis planning as a part of their strategic plans. Another most important factor is get together and share ideas. Work with colleagues to analyze your situation. Most important, आप इकट्ठे हो और अपने आइडियाज को आप शेयर करें. Now this is really very important, क्योंकि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, अपने आइडियाज को शेयर नहीं करेंगे, you will keep on facing crisis. So इकट्ठे होना, आइडियाज को शेयर करना, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना और सिचुएशन को एनालाइज करना जिसको आप फेस कर रहे हैं या फेस कर सकते हैं इन फ्यूचर. तो यहां पे अवॉइडिंग में डेफिनेटली यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि एक पॉसिबल जो आप सोचते हैं कि इन फ्यूचर यू मे फेस सर्टेन क्राइसिस, तो इन एडवांस आप उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और आप एक दूसरे के आइडियाज को शेयर करके कुछ कंक्लूजन्स पे आप पहुंच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान्स बना रहे हैं. एंड वी कॉल दोज प्लान्स क्राइसिस प्लान्स. Perform a SWOT analysis. Okay, what is SWOT? SWOT is an abbreviation of strengths, weaknesses, opportunities, threats. Strengths and weaknesses are the internal factors. Opportunities and threats are the external factors. So आपने जब अवॉइड करना है क्राइसिस को, तो यू शुड नो दैट कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आप फेस कर रहे हैं. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू फेस द क्राइसिस. तो अपनी एक्सपर्टीज के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटीज के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू डू दिस स्वॉट एनालिसिस. एंड देन वीकनेसेस के बारे में आपको कैसे मालूम होगा? ओके, एनी आइडिया हाउ यू नो दैट कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी क्या वीकनेसेस हैं? ओके, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन डू TNA, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस. और आजकल हम एक नई टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड SGA. इट स्टैंड्स फॉर स्किल गैप एनालिसिस. So you do that skill gap analysis, and how you do that, there are different methods. Like for example, interviews हैं, questionnaires हैं, observation है, focus groups techniques हैं, Delphi technique है. तो ये 4-5 popular methods हैं. इन methods की मदद से you perform your that skill gap analysis or training need analysis. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इंटरव्यूज में क्या करते हैं.
या अगर हम पहले क्वेश्चनर्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चनर्स को ज्यादा यूज किया जाता है, कि क्वेश्चनर्स में आप क्या करते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज को क्वेश्चनर देते हैं फिल करने के लिए, जिसमें एम्प्लॉय का नाम नहीं पूछा जाता। हाँ, उसमें ये होता है कि ये सच एंड सच डिपार्टमेंट से है, इस ऑर्गेनाइजेशन से है, लेकिन उसमें एम्प्लॉइज आर नॉट सपोज टू राइट देयर नेम्स ऑन इट एंड वी कॉल इट डिस्गाइज्ड क्वेश्चनर्स। नाउ दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना कि जब आप अपना नाम लिखेंगे, नीचे आप साइन करेंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या वीक एरियाज हैं, तो यू नो वेरी वेल कि लोगों के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल इतने ज्यादा ऑनेस्ट नहीं होते, क्योंकि पीपल हैव ए फियर कि हमने अगर तमाम वीकनेसेस लिख दी और ऊपर नाम भी लिख दिया और नीचे साइन भी कर दिए तो उसके कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फियर, वैसे होना तो नहीं चाहिए ये फियर, क्योंकि वी शुड ट्रस्ट ईच अदर, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सो आइडियल सिचुएशंस में नाम भी मालूम हो, सिग्नेचर्स भी आपके हों, सो आई बिलीव दैट कि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑफ कोर्स वी शुड नीड टू थिंक अबाउट दी ऑल पॉसिबिलिटीज। हमने अपने क्वेश्चनर को इतना इजी करना है और एक पीस ऑफ माइंड देना है अपने एम्प्लॉइज को कि क्वेश्चनर को फिल करते हुए आप 100% यहां पे कंफर्टेबल हो, राइट? सो we use in most cases disguised questionnaire, and then in that questionnaire जो employees हैं उनसे उनकी डिटेल्स ली जाती हैं कि वो लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त जो जिन एरियाज में काम कर रहे हैं उन एरियाज के अंदर उनकी क्या एक्सपर्टीज हैं, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। नॉर्मली रिसर्चर्स जो हैं जो ये स्किल गैप एनालिसिस करते हैं या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, दे यूज लिकर्ट स्केल। Now Likert scale क्या है? Likert is the name of the person who designed or who developed this scale. That is why हम इसको Likert scale कहते हैं, L-I-K-E-R-T, Likert scale. Now Likert scale जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, like we have normally जो यूज किया जाता है ज्यादातर situations में, that is 5-point Likert scale. Now 5-point Likert scale means that कि आपने क्या किया कि like for example आपकी ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि your responsibility is to make feasibility reports in your organization of various projects. तो like for example आपकी जो written communication skill है उसके बारे में है कि do you have your communication skill, written communication skill के बारे में पूछा जाता है कि वो कैसी है। तो like for example you have excellent communication skills, you have average communication skills, you don't know that कि आपकी communication skill कैसी है और वगैरह वगैरह। तो 5 पॉइंट्स में पूछा जाता है, जिसमें नॉर्मली ये किया जाता है कि जो दरमियान में पॉइंट होता है जिसको हम नंबर 3 कहते हैं वो न्यूट्रल होता है या आई डोंट नो होता है, और लेफ्ट राइट पे राइट साइड पे आप कर लेते हैं एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री, और लेफ्ट साइड पे आपके पॉइंट्स हो जाते हैं डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये 5 पॉइंट का लिकर्ट स्केल बना लिया जाता है। नाउ 5 पॉइंट का लिकर्ट स्केल जब आप बनाते हैं और एक स्टेटमेंट आप दे देते हैं, उस स्टेटमेंट को जो है कि आप टिक करते हैं कि 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपकी उस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है अबाउट योर ओन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज और लेवल ऑफ स्किल, कि रिटन कम्युनिकेशन में आपकी स्किल कैसी है। नाउ स्टेटमेंट इज कि डू यू हैव एक्सीलेंट written communication skills? तो whether you say strongly agree, neutral or I don't know or disagree or strongly disagree, तो आप एक को टिक कर देते हैं
और जब आप एक को टिक करेंगे तो डेफिनेटली फिर उसको एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं SPSS, ये नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट में। SPSS सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर में आप तमाम रिस्पॉन्सेज को फीड करते हैं, एंटर करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट्स निकाल के देता है। और यही सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि कौन से एरियाज में आपको अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करनी है, और कौन से एरियाज जो हैं उनके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से एरियाज उनके वीक हैं, कौन से एरिया उनके बहुत ज्यादा वीक हैं, और कौन सी उनकी मेजर स्ट्रेंथ्स है और कौन सी एम्प्लॉयज की माइनर स्ट्रेंथ्स है। तो एक एनालिसिस करने के लिए वी यूज दिस सॉफ्टवेयर। So now you see that doing that like SWOT analysis is really very important. So you go for interviews. Achha, sometimes what happens that you are unable to get the correct responses, क्योंकि एम्प्लॉय को खुद भी नहीं पता अपनी स्किल्स के बारे में, या सम टाइम उसको कुछ डाउट्स हैं, अनसर्टेनिटी है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक क्वेश्चनेयर्स कि आप उससे फिल करवाएं, you can take interviews from your employees. So one to one आप इंटरव्यू ले लेते हैं, उसमें आप जाहिर बात है कि जब टू वे कम्युनिकेशन होती है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ की क्या कंसर्न्स हैं, उसकी क्या कन्फ्यूजन है, उसको क्या डाउट्स हैं, और लाइक फॉर एग्जांपल एक ज़्यादा बेहतर एनालिसिस हो सकता है इन केस ऑफ इंटरव्यू। एंड देन पीपल गो फॉर लाइक फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज कर लेते हैं, क्वेश्चनियर्स कर लेते हैं, उसके साथ साथ लाइक फॉर एग्जांपल दे गो फॉर ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जब आप समटाइम एम्प्लॉय जो है वो इंटरव्यू में भी नहीं बता सक रहा, या फॉर एग्जांपल नहीं बता रहा, या हो सकता ना बताना चाहता हो, वगैरह वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय से पूछते हैं इंटरव्यू में कि क्या आप अपने ऑफिस में टाइम पे आते हैं, आप टाइमिंग्स को फॉलो करते हैं, ऑफिस टाइमिंग को, तो मोस्टली ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज से यस। ओनली फ्यू एम्प्लॉयज दे एक्सेप्ट दैट कि जी मैं कभी लेट आ जाता हूँ, या ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज दे से दैट कि जी वी 100% फॉलो द ऑफिस टाइमिंग्स। या अगर क्वेश्चनर में पूछा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज से दैट कि जी यस वी 100% फॉलो द ऑफिस टाइमिंग्स। तो फिर तरीका क्या है रियलिटी को फाइंड आउट करने का कि यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर एम्प्लॉयज। And when you start observing your employees, then you know that कि कौन कितने बजे आ रहा है और कौन कितने बजे ऑफिस से जा रहा है, जल्दी जा रहा है, टाइम पे जा रहा है, जो भी सिचुएशन है वो आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर हो जाती है। Another method of doing that skill gap analysis or training need analysis is focus group technique. Now focus group में आप क्या करते हैं कि आप कुछ लोगों को एक जगह एक ग्रुप में बिठा लेते हैं, और उस ग्रुप में बिठा के आप उनसे डिस्कशंस करवाते हैं ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड देन यू टॉक विद देम अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो वहां पे एक चीज आपको पता चलती है कि लोग मिलके जब डिस्कस करते हैं, डिफरेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डिफरेंट आइडियाज देते हैं, तो वहां पे काफी सारी चीजें बाहर आती हैं। एंड फाइनली एक और टेक्निक जो आजकल यूज की जा रही है, एंड दैट इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक। स्पेलिंग्स आर DELPHI, डेल्फी। तो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को आप इनवाइट करते, ना ऑल ऑफ दोज मेंबर्स इन दैट डेल्फी टेक्निक, जो उस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, दे आर हाईली कॉम्पिटेंट पीपल, दे हैव द मोस्ट एक्सपर्टीज उन तमाम एरियाज में जिसकी आप बात करने जा रहे हैं, और उन एक्सपर्ट्स की मदद से आप एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि एम्प्लॉयज को किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाए। सो somebody asked me कि which is the most important method of doing skill gap analysis or training need analysis out of these questionnaires, interviews, observation, focus groups, Delphi technique? I said that we can use more than one method at one time. So this can improve the credibility of the information जो कि इसकी मदद से हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, उसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी होगी जब हम एक से ज्यादा मेथड्स को यूज करते हैं।
So we can use a combination of methods. And second thing is, we need to select a method to do TNA or SGA according to the situation, because situation in different organizations varies. It is different in different organizations. So we cannot say that one method is good for all organizations, like one size does not fit all. So same is the case here, that we need to use a variety of methods to know the facts. So after performing the SWOT analysis, you narrow your crisis risk list. Focus on the crisis that would have the worst result, would be most likely to occur. Now this is really very important कि आपने अपनी क्राइसिस रिस्क लिस्ट को नैरो डाउन करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने तमाम पॉसिबिलिटीज जो हैं आपने उसको इनलिस्ट कर लिया. नाउ तमाम क्राइसिस, लाइक आप यहां पे ये आपकी ये थिंकिंग होनी चाहिए जब आप अपना आइडियाज शेयर कर रहे हैं, जब आप वो क्राइसिस रिस्क लिस्ट बना रहे हैं, कि you need to write down each and everything. You need to perceive that, you need to think that everything can go wrong. और जब आप ये सोचते हैं कि everything can go wrong, you have a really big crisis risk list. तो आपने एक लिस्ट बना ली, and then आप उसकी देखते हैं कि इन रिस्क लिस्ट में आपने जितने भी क्राइसिस को लिस्टिंग की है, उसमें कौन से ऐसे क्राइसिस हैं जो कि मोस्ट वर्स्ट रिजल्ट दे सकते हैं, और वो क्राइसिस ऐसे कौन से हैं जिनके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड क्राइसिस. नाउ द सेकेंड स्टेज ऑफ मिट्रॉफ्स crisis management model is called preparing to manage crisis. Now recognize the risk and cost. Brainstorm potential crisis, consider the what and ifs. कि जो क्राइसिस आप फेस कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और तमाम व्हाट्स एंड इफ्स को आप कंसिडर करेंगे. Once you have determined what crises you need to plan for, consider ways to minimize these risks and the cost for each risk. Now this is really very important कि सबसे पहले तो जैसे हमने पिछली स्टेज में देखा कि आपने नैरो डाउन किया क्राइसिस रिस्क लिस्ट में, जितने भी क्राइसिस आपने इनलिस्ट किए थे. अब सेकेंड स्टेज में जब आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू मैनेज द एक्सपेक्टेड क्राइसिस, तो आप ये देखेंगे कि जो मोस्ट वर्स्ट क्राइसिस आप फेस कर सकते हैं फ्यूचर में, और जो जिनकी सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट होगी, उनको मिनिमाइज करने के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, उस क्राइसिस के नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए आप अपने प्लान्स को डेवलप करेंगे. कंसिडर एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस एंड इट्स कॉस्ट. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट you need to perceive, you need to think that everything can go wrong. In the order of importance and cost आप उसको लिस्टिंग करेंगे. Like for example, आप जैसे for example मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो like for example when if I apply the same bullet C that consider everything that could go wrong, so I can think कि जी ये छत अभी नीचे गिर जाए. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये छत एकदम नीचे गिर जाए तो व्हाट इज द प्रोटेक्शन. इसी तरह से अर्थक्वेक आ जाते हैं, इसी तरह से आग लग जाती है. सो देयर आर सो मेनी, यू नो, इट इज अ बिग लॉन्ग लिस्ट. सो यू कंसिडर एवरीथिंग that could go wrong,
और उसकी एक फिर प्रायोरिटी बनाएंगे कि इंपॉर्टेंस का फिल्टर लगाएंगे और कॉस्ट का फिल्टर लगाएंगे कि जिस रिस्क की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि जो आपके एम्प्लॉयज के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है, जो आपकी रिप्यूट को डैमेज कर सकता है, ह्यूमन लाइफ्स को लॉसेस हो सकते हैं, मार्केट शेयर आपका डाउन जा सकता है, आपके कस्टमर्स जो हैं उसे इफेक्ट हो सकते हैं, और उसकी कितनी कॉस्ट है, इस ऑर्डर में फिर आप उसको लिखेंगे। एंड देन यू डेवलप अ क्राइसिस प्लान after you have selected a key what if scenario and analyzed possible consequences. Brainstorm the kinds of decisions that will have to be made and who should make these decisions. Very important. किस किस्म के decisions आपने लेने हैं और इन decisions को कौन लेगा, ये आपको पहले से डिसाइड करना है। तो यहां पे मैं कहना चलूं कि जब क्राइसिस सिचुएशन होती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, और आगे जाके हम बात करेंगे कि न्यू प्रोसीजर्स आ जाएंगे। सो डिसीजन मेकर्स को पहले से आपने डिसाइड कर लेना है कि इन केस ऑफ क्राइसिस क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे और उन डिसीजंस को लेने वाला डिसीजन मेकर कौन कौन से होंगे, ये पहले से आप फाइनल कर लेंगे इन योर क्राइसिस प्लान। Also perform a reality check to identify possible unintended and undesirable side effects. तो डेफिनेटली आपने एक रियलिटी चेक भी करना है कि कौन से ऐसे अनडिजायरेबल फैक्ट्स हैं या अनइंटेंडेड पॉसिबिलिटीज हैं, उनके बारे में भी एक आप रियलिटी चेक परफॉर्म करेंगे और पहले से आपको मालूम होना चाहिए। Dig deep for the root cause. Under the pressures of a crisis, there is temptation to jump to quick fix solutions that may mask the real problems and may result in repeated crisis. Now, होता ये crisis की situation में कि a lot of pressure is there on your organization, a lot of pressure is there on you. तो लीडर्स के शोल्डर्स पे, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑलमोस्ट जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब के ऊपर एक बहुत ही ह्यूज प्रेशर होता है, और एक इस प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा एक अर्जेंट डिमांड होती है कि जो सॉल्यूशंस फौरी तौर पे लेके आए जाए, विद इन सेकंड्स आप सॉल्यूशंस लेके आए। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि सम टाइम कि जो रियल प्रॉब्लम है वो पीछे रह जाती है और आप गलत सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, और जब आप एक दफा इनकरेक्ट सॉल्यूशंस लेके आ जाते हैं तो दैट रिजल्ट्स इन मल्टीप्लाइंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्राइसिस, और फिर एक रिपीटेड क्राइसिस के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सो देन टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स एंड रूट कॉजेस। ओके, मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि पेट का दर्द इंपॉर्टेंट है या पेट के दर्द की वजह? ओके, ऑफ कोर्स पेट के दर्द की वजह इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अक्सर लोग पेन किलर लेते रहते हैं। जब भी कोई उनको पेन होता है दे टेक पेन किलर। कई लोग ऐसे हैं कि उनको पेन होता रहता है, दे कीप ऑन टेकिंग पेन किलर्स, और 4-6 घंटे के लिए उनको आराम आता है, फिर पेन होता है, फिर पेन किलर ले लेते हैं। So they are addressing only the symptoms. They are not addressing the root cause of the problem. So do you know that कि जो पेन किलर्स लेते हैं, हम टैबलेट्स लेते हैं या कुछ लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं, पेन किलर्स जैसे होते हैं, तो पेन को खत्म करने के लिए इंजेक्शन लगवाए जाएं या कोई भी मेडिसिन ली जाए, टैबलेट्स ली जाएं, तो वो आपको ट्रीट नहीं कर रही बल्कि वो आपके उन तमाम सेंसेस को ऑफ कर रही हैं जो आपका ब्रेन आपको मैसेज दे रहा है कि आपको पेन हो रहा है। तो इट मींस कि जो आपको ब्रेन आपको मैसेज दे रही है कि जनाब आपको पेन हो रहा है, आपने उसका स्विच चंद घंटों के लिए ऑफ कर दिया। तो क्या स्विच ऑफ करने से जो असल प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, क्या वो भी खत्म हो गई? Of course not. Unfortunately,
इन डेवलपिंग कंट्रीज जो हम देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, इन मोस्ट केसेस we focus only on the symptoms of the problem. कि like for example अगर एक कोई प्रॉब्लम हमने फेस किया, क्राइसिस फेस किया, तो जो लोग इन्वॉल्व हैं आपने उनको सस्पेंड कर दिया, आपने उनको टर्मिनेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने नए लोग आप लेके आ गए, तो जनाब नए लोग तो आप लेके आ गए, नए अपॉइंट्स आपने नए लोग अपॉइंट कर लिए, लेकिन व्हाट अबाउट द ट्रेनिंग्स, कि जो नए लोग लेके आए हैं उनको आपने क्या वाकई ट्रेनिंग दी है? क्या उनको आपने बताया कि ये जो क्राइसिस हुआ था ये किस वजह से हुआ था? व्हाट वर द रूट कॉजेज? उन रूट कॉजेज को क्या आपने एड्रेस किया? तो फिर क्या होता है, सेम क्राइसिस रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। और जब बार बार क्राइसिस होता है तो ऑफ कोर्स इट मल्टीप्लाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द स्टेक होल्डर्स। सो यहां पे मैं मोस्ट स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा कि हमेशा वी नीड टू डिग डीप फॉर द रूट कॉज। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप लैब से जाके 2-3 टेस्ट करवा के लाएं। ओके, आप टेस्ट करवा के लाते हैं और टेस्ट रिजल्ट्स को देखने के बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, आप वो मेडिसिन लेते हैं और इन मोस्ट केसेस आप ठीक हो जाते हैं। नाउ मीनिंग दैट कि डॉक्टर साहब ने आपसे वो लैब टेस्ट क्यों करवाए? उन्होंने आपके सिर्फ सिम्टम्स देख के आपको मेडिसिन क्यों नहीं दी? तो जहां पे मर्ज की नोयत बहुत ज्यादा सीवियर होती है, जहां पे बहुत को खतरनाक किस्म की बीमारी होती है, जहां पे डाउट्स होते हैं कि रूट कॉज का पता नहीं चल रहा होता, सिंपल एक जब डॉक्टर आपको एक चेक कर रहा है आपको, तो वहां से उसको नहीं पता चल रहा कि इसकी रूट कॉज क्या है आपकी बीमारी की, तो वो आपको टेस्ट के लिए भिजवा देता है। सो सेम इज द केस कि जब क्राइसिस सिचुएशन होती है तो वी शुड नो कि रूट कॉजेज क्या हैं, असल किस वजह से ये क्राइसिस हुआ। पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो सेम क्राइसिस बार बार हो रहे हैं, तो जब सेम क्राइसिस बार बार होते हैं तो व्हाट आर द रूट कॉजेस? और जब आप रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग दैट यू कैन मैनेज क्राइसिस मच बेटर। लेकिन अगर आप सिर्फ सिम्टम्स को एड्रेस करते रहेंगे तो फिर वही पेन किलर की बात है कि चंद घंटों के लिए आपका दर्द ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा हो जाएगा। और ये आप जरूर ध्यान में रखें कि इफ वन टेक्स ऑन takes on keeping like getting those पेन किलर्स, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर कोई पेन किलर भी काम नहीं करता और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। The only way to solve these problems is to understand their root causes and implement real solutions. तो रूट कॉजेज आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप रियल सॉल्यूशंस लेके आएंगे। अगर आप सिम्टम्स को एड्रेस करेंगे तो आपके कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस होंगे। तो रियल प्रॉब्लम्स, रियल रूट कॉजेज, रियल सॉल्यूशंस, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू डिग डीप फॉर द रूट कॉज। Crisis management team. Okay, I want you to think about it. Have you ever heard about crisis management teams in Pakistan, whether in public sector or private sector? जब हम advanced countries की बात करते हैं तो why they are so successful? Why they are able to manage their crisis so well? वहां पे ह्यूमन लाइफ्स के नुकसानात कम होते हैं, ह्यूमन लाइफ्स के लॉसेस बहुत कम होते हैं, इंजरीज कम होती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस कम होते हैं, वो बहुत जल्दी क्राइसिस को मैनेज कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। तो व्हाट इज द रीजन?
अगर आप सोचें तो you know that कि they have developed crisis management team, but in Pakistan, in most of the organizations, we do not have those crisis management teams. So crisis management team जो composition होगी, there is a membership should be based on representation, knowledge and skill. कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहां से एक एक दो रिप्रेजेंटेटिव आप मेंबर बनाएंगे CMT के, who are knowledgeable and who have the certain skills of crisis management. And these are the major responsibilities of crisis management team. They coordinate all crisis related activities. जितनी भी क्राइसिस से मुतालिक एक्टिविटीज हैं उनको उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है. गैदरिंग एंड रिव्यूइंग फैक्ट्स ऑफ क्राइसिस, कि फैक्ट फाइंडिंग करनी है, रिव्यू करना है जो भी फैक्ट्स हैं क्राइसिस के. डिटर्मिनिंग क्राइसिस रिस्पॉन्स एक्टिविटीज, कि क्राइसिस को किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जाए यह भी डिटर्मिन करेगी CMT. एलोकेट रिसोर्सेस, सो वी हैव 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेस. ओके, आपको याद है कौन कौन से? ओके, देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेस: ह्यूमन रिसोर्स, financial resource, physical resource, information resource. So there are 4 type of resources जो कि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए और एक ह्यूज जाइंट ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए. Now human resource means that all the persons who are working for the organization at any level. It includes employees, employer, suppliers. So any person who is working for the organization at any level, they are called human resources. Then we have financial resources. जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आप पैसा लगाते हैं, money, capital, that is called financial resource. And then we have physical resources. Like for example land, आपको जमीन चाहिए, लैंड के ऊपर आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है, बिल्डिंग में आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको मल्टीमीडिया चाहिए, आपको लाइट्स चाहिए, आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको चेयर टेबल चाहिए. और अगर हम पाकिस्तान में वापडा की बात करेंगे तो दे नीड वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. एंड दीज आर कॉल्ड फिजिकल रिसोर्सेस. एंड देन फाइनली द 4th रिसोर्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिसोर्स. और इंफॉर्मेशन आपको कहां कहां से मिलती है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, योर ऑब्जर्वेशन, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनमें से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि इन केस ऑफ क्राइसिस जो तमाम रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना. क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम लोगों को इक्वल रिसोर्सेज दें इन केस ऑफ क्राइसिस. सो द क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ऑब्जर्व्स कि कौन से डिपार्टमेंट को, कौन से लोगों को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, और उसमें भी उन्होंने डिसाइड करना है कि ह्यूमन रिसोर्स की कहां पे ज्यादा जरूरत है, फाइनेंशियल की कहां जरूरत है, फिजिकल की कहां ज्यादा जरूरत है, इंफॉर्मेशन की कहां ज्यादा जरूरत है. सो उन्होंने कस्टमाइज करके उनको रिसोर्सेज को एलोकेट करना है. सो हर एक को उसकी नीड बेस के ऊपर आप रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं. एंड दैट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्राइसिस मैनेजमेंट टीम. और यहां पे मैं ऐड करता चलूं कि जब भी क्राइसिस आपको फेस करते हैं, योर ऑर्गेनाइजेशन फेसेस क्राइसिस, तो एज ए लीडर इट इज योर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की कंपोजिशन हो चुकी हो और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं वर्किंग के, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट टीम टेक्स कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इमीडिएट इफेक्ट. स्पेसिफाइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. एंड देन ट्रेनिंग स्टाफ. ट्रेनिंग के बारे में मैं सिर्फ यहां ये कहना चाहूंगा
कि ट्रेनिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में ट्रेनिंग पे बात करेंगे कि हाउ टू गिव ट्रेनिंग टू आवर एम्प्लॉइज बिफोर क्राइसिस, एंड देन एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने लोग जिनका कोई ना कोई कंसर्न है इस क्राइसिस के साथ, विक्टिम्स हैं, अफेक्टेड हैं, फैमिलीज हैं, कम्युनिटी है, तो जो कम्युनिटी, इन तमाम का एक कंसर्न होता है रिगार्डिंग द क्राइसिस, तो उन तमाम के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना, स्ट्रेंथन करना, मेंटेन करना, दैट इज द मेजर नीड ऑफ द टाइम ड्यूरिंग क्राइसिस. So that is another major responsibility on the shoulders of crisis management team. And finally, major responsibility of CMT is to monitor progress and continuing situation assessment. कि वो प्रोग्रेस को देखते रहें और एक लगातार सिचुएशन की असेसमेंट करते रहें. यहां पे एक चीज जरूर आप अपने जहन में रखें कि द लीडर मस्ट इंश्योर दैट ऑल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम मेंबर्स are trained before the crisis occurs. ये नहीं हो कि क्राइसिस हो जाए और फिर आप सोचें कि जी किसको कहां ट्रेनिंग पे भेजना है, because then you have no time for that. So, as a proactive leader, it is your major responsibility to ensure that each and every member of crisis management team must get the appropriate training, desired training, required training before the crisis occurs. Now, talking about the crisis management team training, the training of the crisis management team is one of the critical success factors that must be addressed if an adequate response is to be achieved. Now, these are the principles of effective trainings. सबसे पहले ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि आप एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं, या जिसको आजकल हम कहते हैं स्किल गैप एनालिसिस. तो उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे कि क्वेश्चनर्स हैं, इंटरव्यूज हैं, ऑब्जर्वेशन है, आपकी लाइक फॉर एग्जांपल फोकस ग्रुप्स टेक्निक्स हैं, डेल्फी टेक्निक है. तो ये दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जिसकी मदद से आप टीएनए करते हैं. और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि किस तरह की ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज को चाहिए, उनकी कौन कौन से वीक एरियाज हैं. तो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक आप उनको ट्रेनिंग देंगे. हमारे यहाँ अक्सर देखा गया पाकिस्तान में, मुझे 22-23 साल हो गए यही काम करते हुए, कि इन मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स जो मैंने ऑब्जर्व की और देखा मैंने कि टीएनए किए बगैर ही ट्रेनिंग्स करवा दी जाती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाउ द ऑर्गेनाइजर्स, हाउ द पीपल हु आर मैनेजिंग दोज ट्रेनिंग्स, हाउ दे नो इन एडवांस कि हमें किन एरियाज में ट्रेनिंग देनी है. इवन अगर आप एक एरिया ले भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग बात करते हैं कि जी कम्युनिकेशन स्किल्स का एरिया है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके एम्प्लॉयज की वीक है. तो यू नीड टू बी हाईली स्पेसिफिक अबाउट द एरिया इन विच ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. सो बजाय ये कि आप उनको जनरल किस्म की ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, जिससे जारी बात है वेस्टेज ऑफ ऑल 4 रिसोर्सेज होंगे, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल, इंफॉर्मेशन. And Pakistan is not a rich country. तो पाकिस्तान में ऑलरेडी there is a lack of resource problem. तो why we keep on wasting our resources? So once we do that TNA, we can ensure that we get the desired targets, we get the desired results. लेकिन विदाउट डूइंग दैट टीएनए अगर आप ट्रेनिंग्स कराते हैं तो इट मीन्स दैट कि इन मोस्ट केसेस यू आर वेस्टिंग द रिसोर्सेज, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. सो आफ्टर डूइंग दैट टीएनए, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डेवलप द कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ टीएनए. आपने जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की या आपने स्किल गैप एनालिसिस किया, वहां से जो आपको इंफॉर्मेशन मिली उसकी बेसिस पे अब आपको पता लगा कि किन एरियाज में हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की अर्जेंट नीड है,
उन नीड बेस्ड एरियाज को सामने रख के यू डेवलप द कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग, राइट, एंड इट मींस दैट आप उसको कस्टमाइज करें। कंटेंट डेवलपमेंट के बाद आप देखेंगे कि उस कंटेंट को जो आपने डेवलप किया है, उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए कौन से ट्रेनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सो वेदर यू प्रेफर इंटरनल ट्रेनर्स और एक्सटर्नल ट्रेनर्स, and I strongly believe that there should be combination of both internal trainers and external trainers. So अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी आप ट्रेनर्स लें और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी आप ट्रेनर्स लें। सो कॉम्बिनेशन के साथ आप चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके जो इंटरनल ट्रेनर्स हैं दे नो द सिचुएशन एग्जैक्टली कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, सिचुएशन क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, and then external trainers they come up with new ideas, unique ideas. So we prefer the combination of trainers. Now trainers की जो other characteristics हैं, one of the major characteristic of trainer is that trainer must be the strongest communicator. अगर ट्रेनर आपके माइंड को ग्रिप नहीं कर सकता, अगर आपको ट्रेनर कन्विंस नहीं कर सकता, अगर ट्रेनर के पास लाइक फॉर एग्जांपल स्किल नहीं है, अगर ट्रेनर सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, अगर ट्रेनर पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग जो ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उसका फेलियर हो सकता है। सो इन तमाम फैक्टर्स को आप सामने रखेंगे। एंड देन मेथड्स, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग ट्रेनिंग। Like for example, people go for methods like presentation methods, role plays, case studies, group work, presentations, things like that. And evaluation, feedback is crucial, because जब तक आप feedback नहीं लेंगे, how you are going to know कि you are moving in the right direction. So feedback लेंगे और feedback लेने के बाद आप अपने ओवरऑल ट्रेनिंग जो आपने प्रिंसिपल्स अभी हमने सारे डिस्कस किए, इन तमाम के अंदर आप इंप्रूवमेंट्स लेके आएंगे, ताकि जब यही ट्रेनिंग आप दोबारा कराते हैं तो यू कैन इंप्रूव इट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया, व्हाट मीडिया वांट टू नो इन अ क्राइसिस सिचुएशन, सो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एंड यू शुड बी रेडी एज ए लीडर, यू शुड बी रेडी टू फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। What happened? Were there any deaths or injuries in crisis? What is the extent of damage? Is there a danger of future injuries or damage? Why did it happen? Who or what is responsible? What is being done about it? When it will be over? Has it happened before? Were there any warning signs of the problem? Now these are the most important questions. और अगर आप जब देखते हैं टेलीविजन पे, न्यूज़ पे, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली यही क्वेश्चन है जो मीडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में कर रहा होता है, और इसके आंसर्स आपको बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए, बिल्कुल हकीकत पे मबनी, फैक्ट्स पे मबनी। यू शुड बी रेडी टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाउ मीडिया डिमांड्स एक्यूरेसी एंड सिंप्लिसिटी। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मीडिया को, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, सिंपल आप वर्ड्स यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप मुश्किल टर्मिनोलॉजीज या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जो जनरल पब्लिक को समझ नहीं आ रहे, तो दैट कैन मल्टीप्लाई द इंपैक्ट ऑफ क्राइसिस। क्योंकि जब कंफ्यूजन होगी तो र्यूमर्स होंगे, और जब र्यूमर्स होंगे तो डेफिनेटली आपकी मार्केट रेपुटेशन जो है वो सफर करेगी। स्टैटिस्टिक्स विच आर एक्सप्लेन्ड, आप कोई भी नंबर्स बता रहे हैं, कोई भी डिजिट्स बता रहे हैं, तो उनको एक्सप्लेन किया जाए एग्जाम्पल के साथ। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं मीडिया को, उसका आप बैकग्राउंड बताएं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताएं। कमेंट्स फ्रॉम हाईएस्ट अथॉरिटी, कोशिश ये होनी चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एक ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स आए। एंड देन बोथ साइड्स ऑफ द इशू, कि एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और एक दूसरे पार्टी जो है जिनके साथ लाइक फॉर एग्जांपल जिनका लॉस हुआ है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। स्पीड एंड स्पीड,
दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट मीडिया डिमांड स्पीड। इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो टेलीविजन पे दर्जनों चैनल्स जो हैं वो न्यूज के हैं, तो बल्कि यहां में मैं कहूंगा कि न्यूज के चैनल ज्यादा हैं, बाकी जो चैनल्स हैं वो कम है। तो ब्रेकिंग न्यूज का इस वक्त अगर आप देखें तो एक ब्लिंक कर रही होती है हर न्यूज चैनल के ऊपर, ब्रेकिंग न्यूज हर चंद मिनट के बाद। तो they want speed and speed, so you need to provide them information at the earliest. You are in the spotlight. In a crisis, everyone watches what you do. Whether you like it or not, you are in the spotlight. The key is getting out in front of the crisis in its first hours with clear statements, both internally and externally. Accept responsibility and build confidence and credibility. So these are the major characteristics of the ideal spokesperson, and preferably from the crisis management team. He or she should be polite and patient, well informed, accurate, reliable, fluent, available, and trustworthy. Now the next stage of Mitroff's crisis management model is recognizing crisis. So you see that right side पे आप देखिएगा yes no लिखा हुआ है, left side पे there are certain statements. तो is it a crisis? Has the event in question caused or does it has the potential to cause injury to any person? Yes no. A threat to the health and safety of any person? Yes no. A threat to the environment? Yes no. A breakdown or a threat to your reputation? Yes no. A serious threat to employees' morale and well-being? Yes no. A loss of data? Yes no. Serious financial loss? Yes no. A legal action against your organization? Yes no. Now how do you interpret this score? ये जो yes no आपने ऊपर किया tick. If you answered yes to any of the above questions, you are probably dealing with an approaching crisis. Crisis आप तक पहुंचने वाला है, आपको पहले से पता चल जाएगा कि you are going to face a crisis. तो इससे पहले कि वो आप तक पहुंचे, you better be ready for it to manage. Next stage in crisis management model presented by Mitroff is containing crisis. Warren Buffett says that one's objective should be to get it right, get it quick, get it out, and get it over. When a crisis strikes, the first thing you must do is to contain it. कि जो हो गया आप उसको मजीद फैलने मत दें. You must make decisions quickly. Be on the scene. Your physical presence is really very important. Communicate about the crisis quickly. Expect rumors and false information. Notify key people, management, general public, employees, vendors, government authorities, and clients. And stick to the facts. Do not guess or attempt to cover up. गैस करने की कोशिश ना करें, कवर अप करने की कोशिश ना करें, झूठ बिल्कुल मत बोलें, and stick to the facts or be honest as much as possible, because honesty is the best policy. Because if you cover up or if you start making guesses और फिर वो जाके आगे जाके एक different fact आ जाता है, एक different information आ जाती है, तो आपकी credibility total damage हो जाती है. And the next stage is called resolving crisis. A crisis requires fast, confident decision making. But how do you make good decisions when events move so quickly, when things are confusing, and when it is hard to sort out what's important? Managing emotions that accompany a crisis, effective leader's role, and taking effective action can help. So these are some of the suggestions for resolving crisis. So let us talk about the leader's role here. A leader in crisis responds by facing the crisis, turning fear into positive action, because leader is a person who is encouraging everybody. A leader is a person who is motivating everybody. A leader is a person who is the most, bold person in the organization, who is taking initiatives
and who is leading others. Being vigilant, watching for new developments and recognizing the importance of new information, maintaining focus on the priorities, ensuring that people are safe first. So saving human life is always the first priority. Assessing and responding, not taking action. Activate your crisis plan, help everyone work together, avoid blaming each other, do what needs to be done. These are the major responsibilities of a leader in crisis situation. And final stage of Mitroff's crisis management model is called learning from crisis. When you survive a crisis, don't just try to put it behind you. Rather, take the opportunity to learn from the experience and make changes to avoid or prepare for another similar event. Review how the crisis was handled. Ask yourself the following questions. Could we have prevented the crisis? If so, how? Now this is really very important कि जो क्राइसिस हमने फेस किया, क्या हम इससे बच सकते थे? अगर बच सकते थे तो कैसे? You need to answer these questions. At what point did we realize we were in crisis? Could we have recognized the signs earlier? What warning signals went off that we may have ignored? हमें क्राइसिस का पहले से क्यों नहीं पता चला? ऐसे कौन से वार्निंग सिग्नल्स थे जिसकी मदद से हमें पता चल सकता था लेकिन वो ऑफ थे? हमें क्यों नहीं पता चला कि क्राइसिस हम तक पहुंचने वाला है? तो हमारी कौन सी ऐसी वीकनेसेस थी जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता चला? What warning signals did we pay attention to? और ऐसे कौन से वार्निंग सिग्नल्स थे जिनकी तरफ हमने तवज्जो की? What did we do right? हमने क्या क्या ठीक किया? What could we have done better? और हम क्या बेहतर कर सकते थे? Now these are the 6 questions and most honesty के साथ आपने इनके रिस्पॉन्स देने आफ्टर क्राइसिस. और जब आप 100% ऑनेस्टी के साथ इन 6 क्वेश्चंस के आप आंसर्स देते हैं तो डेफिनेटली you are learning from crisis. And what is the major benefit? The major benefit is next time you are facing another crisis, you can manage it well. Talking further about crisis management, publicly promise that to the best of organization's abilities, similar situations will never occur. So you need to promise that with the public. Go beyond communities and victims' expectations. कम्युनिटी और विक्टिम की एक्सपेक्टेशन से आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा. और अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन से आगे नहीं जाएंगे तो दे विल लूज योर ट्रस्ट ऑन यू और आपकी एक रेपुटेशन सफर होगी. एडवर्स सिचुएशंस मैनेज क्विकली कॉस्ट फॉर लेस एंड आर कंट्रोवर्शियल फॉर मच शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम. इट मीन्स दैट कि जितना क्विक रिस्पॉन्स देंगे आप, आपकी जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है वो जितना क्विक रिस्पॉन्स देगी, जितनी जल्दी आप इस क्राइसिस को मैनेज करेंगे, उतना ही आपका नुकसान कम होगा, उतना ही आपका ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान कम होगा, उतना ही आपका फाइनेंशियल लॉस कम होगा, उतनी ही आपकी रिप्यूट कम डैमेज होगी. सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ्स, ऑन फाइनेंशियल and your market reputation, so you need to focus more on the quickest response but in a systematic manner. Prepare contingency plans in advance. आपने situational plans, contingency plans in advance बना के रखने हैं, because sometime what happens that one totally unexpected event happens. तो आपने उसके बारे में आपके पास जो क्राइसिस जो रिस्क लिस्ट है जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी सब प्लान बनाया हुआ है, अपना क्राइसिस प्लान आपने अपने आप को रेडी किया हुआ है, उस लिस्ट में इस क्राइसिस का जिक्र ही नहीं है जो आप फेस कर रहे हैं इस वक्त. फॉर एग्जांपल, तो
उसके लिए आपको contingency plans बनाने हैं. So you need to act according to the situation. Now the thing is, plan for the next one. We need to plan for the next crisis. Get input from everyone. Now this is really very important, that feedback is crucial. You need to get input from the low management, middle management and top management. You need to get input from all the stakeholders. You need to get input from all those persons who have any concern with that crisis. Incorporate the ideas and information in your next round of strategic planning. और वो जो आपने फर्स्ट स्टेप में इनपुट लिया है उसको आप अपनी strategic planning का पार्ट बनाएंगे. Break the crisis down into component parts to analyze how you might handle a similar crisis more effectively next time. So crisis may be your defining moment. The crisis you are facing or inevitably will face may be the defining moment in your professional life. Leaders who don't take advantage of crisis to make long-term changes not only waste opportunities but sow the seeds for a repeat experience. And finally, I say that do your best and leave the rest to Allah. Now this is the most important thing, that innamal amalu binniyat, amal ka daro madar niyat par hai, and we call niyat attitude. So develop that highly positive attitude, and as a result you have a positive behavior, and with positive attitude, with the right attitude, you have the right behavior, and with the right behavior, do your best. And once you do your best, leave the rest to Allah. Thank you very much for your kind attention. Inshallah, see you all in the next lecture. Khuda Hafiz.